सूची में शामिल करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बेनी बेहनन जी। Thank you, Chairperson. I wish to bring the attention of the August House a matter of urgent public interest regarding the need of extending the Kochi Metro Rail network to Cochin International Airport via to Angamali. Currently, Kochi Metro operates with the city limits and does not provide direct connectivity to International Airport. Cochin International Airport is one of the busiest airports in India, serving millions of passengers annually, including a large number of international travelers and NRI from Kerala. Yes. The proposed metro extension from Alway to Angamali via Sial will not only enhance last-mile connectivity for the air travelers, but also decongest existing roads and reduce traffic bottlenecks on the NH 554 corridor. Angamali is a strategic junction on the railway network, and linking it with the metro system would provide multi-modal international integration benefiting both children. Recently, the railway minister and the railway board in principle agreed to start a railway station in the Nedumasheri airport, and the work will start soon. Thank you, Mr. Honorable Minister. I urge the Government of India, the Ministry of Housing and Urban Affairs to take immediate steps to conduct a feasibility study and initiate the process of extending Kochi Metro to Cochin International Airport by Angamali. Thank you. माननीय सदस्य श्री काथिर आनंद जी। Vanakkam, Chairperson. With a voice that echoes the pride of Tamil Nadu and the conscience of this nation, I rise humbly to urge the government to declare Tirukkural, authored by Sage Thiruvalluvar, as India's national treasure book, madam. This is not a regional demand, it is a national call for moral recognition. Tirukkural is not a religious scripture, but a timeless ethical masterpiece, 1,330 couplets that teach virtue of Aram, Porul and Inbam. Its verses speak non-violence, justice, compassion, equality and duty, madam. Madam, in the same house, Prime Minister has quoted from Tirukkural, Finance Minister has quoted from Tirukkural, and many others have also displayed the verses in this parliament. Madam, this is not a new demand. Tamil Nadu House has already passed resolutions to announce Tirukkural as a national treasure book, madam. Madam, why is this delay? In these challenging times when the public life earns for ethical grounding, what better beacon can Tirukkural? It transcends religion and language. It unites where the politics divides. By declaring Tirukkural as a national treasure book, we honor not just Tamil heritage, but India's commitment to dharma, dignity and moral clarity. I appeal to the Honorable Minister and this government to declare Tirukkural as a national treasure book. Thank you, madam. जी सभापति महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महोदया, हमारा जो शिक्षा का अधिनियम है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत देश के प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का काम किया गया। इसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए विद्यालय खोले गए। केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के सहयोग से विद्यालय खोले गए, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी शिक्षा के इस महत्व को समझते हुए संविधान में उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया था 45 में, अनुच्छेद 45 में। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लाखों लाख विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय हैं वो बंद किए जा रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई कमज़ोर होगी, नहीं पढ़ पाएंगे। साथ साथ जो वहाँ पर कार्यरत रसोइया हैं उनका भी रोजगार छिनेगा, शिक्षा मित्र का रोजगार छिनेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ, माननीय श्री नरेश उत्तम जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ अपने को जोड़ते हुए मैं ये मांग करता हूं कि उन प्रदेश केंद्र की सरकार ये सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश में वो विद्यालय बंद न किए जाए। धन्यवाद। Madam, whenever an MSME seeks a loan to buy a machinery, they are compelled to buy a machinery breakdown insurance policy. But when the machinery breaks down and they want to repair the machinery, the insurance company denies and delays the claim, saying that they must pay for the repair and only then come and claim it. This actually impedes business, and the bank will not finance the repairing,
and the insurance company will also not give the money to repair the machinery. The small entrepreneur is hamstrung because of a broken machinery which we can't repair. There is nothing in the insurance policy which tells that they must pay for the repair and then claim it. This is a breach of contract, and it makes doing business very difficult. While this government talks about Make in India, they must remove these little niggles which are there practically in day-to-day life, so that businesses can thrive. The finance ministry must instruct the insurance companies to settle claims even before the payment is made and only when the invoice is raised. Thank you very much, madam. माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन जी। मैडम मैं पुनः एक बार पटना की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। 19 के बाद पहली बार पटना जलमग्न हो गया, डूब गया। राजेंद्र नगर से लेकर के पूरा का पूरा पटना के हर घर में पानी है। नेता कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और पदाधिकारी लूट रहे हैं। बिहार में लगातार अभी आरा के शाहपुर के जमनिया गांव 5 गांव कट गए। कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। बीन, मलाह, केवट, नुनिया, एबीसी, एसटी, एससी का पूरा गांव टूट गया। वहां एक ठेकेदारों ने गंगा के कटो गलत बालू माफियाओं की मिली भगत से अभी 9-9 करोड़ रुपया दिए, उसको भी लूट लिए। इस तरीके से नगर निगम में मैडम, नगर निगम के जो पदाधिकारी है, एक बड़ा माफिया रिशु सिंह को यहां से दुबई भगा दिया, जिसने लूटा। और पटना को लूटने में सबसे बड़ी भूमिका सरकार के मंत्री और इसकी है। मैं माननीय चेयरमैन पर्सन से आग्रह करूंगा कि आप इसको देखें। नौगछिया, कुर्सेला, रुपौली, बायसी, अमोर। आप मैडम देखिए, अभी मैं एक मिनट हो गया, 1 मिनट से ज्यादा हो गया। आप सभी सहयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल पाएंगे। माननीय सदस्य सभापति जी, मैं देश का एक बहुत ही सीरियस इशू सदन के सामने और सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हो। सभापति जी, इस देश के जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के जो 35 इयर्स के बिलो पॉपुलेशन है वो 65% है महोदया जी। लेकिन आज इस 65% पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन के सामने बड़ा एक समस्या है। वो समस्या है ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन। इस अल्कोहल ड्रग्स एडिक्शन में पूरे देश में जो हमारे यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उनका मुताबिक पूरे देश में 1.48 करोड़ हमारे यूथ है जो अभी इस ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन का शिकार है। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, इमीडिएटली ड्रग्स एंड एडिक्शंस इसको, माननीय सदस्य, जो इसका जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको खत्म करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म। धन्यवाद मैडम। पंजाब की पप्पू जी, पंजाब की राज्य सरकार पंजाब के किसानों की जमीन छीनना चाहती है। पंजाब के अंदर लैंड पूलिंग की पॉलिसी के तहत 50,000 एकड़ को किसानों से छीना जा रहा है। आज पूरे पंजाब में पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो 3 काले कानून आए और अब राज्य सरकार ने ये कह दिया, किसानों को डराया गया है कि आप अगर जमीन नहीं दोगे तो इसके बाद आपकी जमीन का कभी CLU नहीं होगा। 1 एकड़ लेकर उनको 1000 गज का रहायशी प्लॉट दिया जा रहा है और 200 गज का कमर्शियल। किसान जमीन देना नहीं चाहता, किसान चाहता है कि हमारी मर्जी के बिना हमारी जमीन छीनी ना जाए। भूमि अधिग्रहण कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। उस कानून के तहत मैं चाहूंगा कि केंद्र की सरकार इंटरफेरेंस करे और किसान की जमीन छीन देना। सुश्री मिताली बाग जी है नहीं क्या? ये मिताली बाग जी नहीं है? मिताली बाग जी वो सामने है। माननीय सदस्य सुश्री मिताली बाग जी,
মাইক নাই নমস্কার মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। পশ্চিমবাংলার মানুষকে বারবার আক্রমণ ও বঞ্চনা করা হয়েছে, এবার শুরু হয়েছে বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ। তাই বলবো সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় নজরুল। অর্থাৎ এই বাংলা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, এই বাংলা কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা, এ বাংলা মাতঙ্গিনীর বাংলা, এ বাংলা বিদ্যাসাগরের রাজা রামমোহনের বাংলা। যেভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার চলছে এবং বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে এবং বাংলা ভাষার ওপর সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা বলি নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলনমোহন। সর্বধর্মের মানুষ একসাথে বাস করবে, এটার নামই ভারতবর্ষ। তাহলে কেন এই দ্বিচারিতা, কেন বাঙালিদের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ? আজকে হঠাৎ করে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে এরকম চিৎকার করা হচ্ছে, তাহলে তো বলতে হয় যিনি ভারতবর্ষে চৌকিদারি করার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি কি কিছুই জানেন না? 2012 সালে 25শে মে মুম্বাই হামলা হয়েছিল, তখন মোদিজি তৎকালীন সময়ের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে বলেছিলেন যে বর্ডার আপনার, সীমান্ত আপনার, বিএসএফ আপনার, পোস্টাল সিকিউরিটি আপনার, সব কিছু আপনার। তাহলে কিভাবে অনুপ্রবেশকারীদের আগমন ঘটলো? আর আজ এই প্রশ্ন কেন মোদিজির জন্য প্রযোজ্য হবে না? জানতে চাই বাংলা, জানতে চাই ভারতবর্ষ। বিজেপি একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিকে খোঁচা মারছে। ओम प्रकाश निंबालकर जी। धन्यवाद सभापती महोदय। मी आपलं लक्ष देशातील अतिशय गंभीर गोष्टीकडं आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो। सभापती महोदय, ऑनलाईन गेमिंगचा विळखा हा अतिशय मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सामान्य कुटुंबांना गिळंकृत करतोय। सभापती महोदय, मला एक उदाहरण द्यायचं आहे। माझ्या धाराशिव तालुक्यातलं बावी गाव, लक्ष्मण जाधव नावाचा एक JCB चालक, ज्यानं स्वतःच्या 2 वर्षाच्या मुलाला आणि पत्नीला विष देऊन त्या ठिकाणी त्याची हत्या केली आणि स्वतः आत्महत्या करून हा ग्रस्त त्या ठिकाणी मेला। सभापती महोदय, हे कारण मरण्याचं केवळ ते ऑनलाईन जी जंगली रम्य ॲप आहे ते आहे। मला वाटतंय ह्या ऑनलाईन गेमिंग ॲपमुळं ग्रामीण भागातले खूप मोठ्या प्रमाणात तरुण त्या ठिकाणी ह्या जंगली ॲप, ह्या ऑनलाईन गेमिंग ॲपला त्या ठिकाणी बळी पडतायत। माझी विनंती सभापती महोदय, मला फक्त 1 मिनिट माझा मुद्दा मांडू द्या। सभापती महोदय, केंद्र मला फक्त एकच विनंती करायची आहे की राज्य सरकार म्हणते हा केंद्राचा विषय आणि केंद्र सरकार म्हणते राज्याचा विषय आहे। माझी विनंती एवढीच आहे की केंद्र सरकारने याच्याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून या ठिकाणी। माननीय सदस्य मलिक जी। माननीय सभापति, धन्यवाद। देरी से ही आपने मौका तो दिया। मान्यवर, पूरे देश में किसानों का खाद के नाम पर शोषण किया जा रहा है। सरकार कान में तेल गेर करके बैठी है। किसान जो अपनी फसल के लिए डाई का खाद लेता है, डाई की शॉर्टेज है, उसके साथ हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, IPL, क्रबको, इफ्को अधो मानक पोटास दे रही है, जिसमें मात्र 14.5% पोटास है। किसान को 1500 रुपये में 60% पोटास का बैग मिलता था 50 किलो का, अब उसे 750 रुपये में 14.5% का बैग मिलता है। इस प्रकार 60% का पोटास लेने के लिए किसान को 3000 रुपये देने पड़ते हैं, डबल पैसा देना पड़ता है। और दुख इस बात का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उन लोगों से वो खाद खरीद करके, जो कारखाने की राख लेकर के, राख में प्राकृतिक रूप से पोटास होता है, उस राख को बैग में बंद करके, मेरे जिले में 5 कारखाने हैं और वो बेच रहे हैं कोऑपरेटिव के, इफ्को के, क्रबको के, IPL के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपया कमा किसान लूट रहा है। अकेले राजस्थान में 20,000 टन की बजाय 60,000 टन पोटास बेच दिया गया। मानवर, किसानों का बेहद शोषण है। मेरा अनुरोध आपसे कि अधोमानक पोटास बेच करके पैसा कमाने वालों के खिलाफ विधिक माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं उठा रहा हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में देवरोड कैंटोन बोर्ड है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश भर के कैंटोनमेंट बोर्ड, वहाँ के
महानगर पालिका में शामिल कर रहे हैं। वैसे कि पूना जिले में पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड और खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शामिल किए। देवरोड कैंटोनमेंट बोर्ड पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लगकर है। मेरी मांग है कि देवरोड कैंटोनमेंट बोर्ड ये पिंपरी चिंचवड कॉरपोरेशन बोर्ड में शामिल किया जाए और केंद्र सरकार उसको वित्तीय सहायता समय पर नहीं देती, इसलिए बहुत सारी समस्याएं। तो मैं फिर से मांग करता हूं कि देवरोड कैंटोनमेंट बोर्ड पिंपरी चिंचवड कॉरपोरेशन में शामिल किया सुश्री जाए। वर्षा गायकवाड़ जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी और यहाँ पे रेल मंत्री भी उपस्थित है, तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगी कि मुंबई शहर में अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अगर कोई इस्तेमाल होता है तो रेल का इस्तेमाल होता है। मुंबई में लगभग 70 लाख लोग हैं वो रेल से ट्रैवल करते हैं। और मैं उनको मालूमात देना चाहती हूँ, जनवरी 2015 से लेकर मई 2025 तक में 10 सालों में रेलवे की दुर्घटना में जो है लगभग सम्मानीय अध्यक्ष महोदया 26,547 लोगों की उसमें मौत हो गई है, जिसमें से 14,175 लोग की मौत ये सिर्फ ट्रैक को पार करते हुए हुई है। मुझे ये भी बताना पड़ेगा आपके माध्यम से उन्हें कि उसमें से सिर्फ 1,408 लोगों को, मृतक फैमिली को जो है वो 103 करोड़ रुपयों की जो है वो मदद मिली है और जो इंजर्ड हुए हैं उन लोगों को 14 करोड़ की मौत जो है 14 करोड़ रुपयों की जो है वो आर्थिक मदद मिली है। मुझे आपके माध्यम से ये भी बताना है कि मुंब्रा के अपघात में जो दुर्घटना में जो है वो 10 लोग घायल हो गए, उसमें से 5 लोगों की मौत हुई है। धन्यवाद। तो हम ये आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहते हैं कि जिस तरह वो कवच की बात कर रहे हैं। प्रिया सरोज जी। और कुछ धन्यवाद धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान जनपद जौनपुर के अंतर्गत बरसेट्टी रेलवे स्टेशन की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूँ। ये एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहाँ से बड़ी संख्या में यात्री जौनपुर, प्रयागराज और अन्य स्थानों की यात्रा करते हैं, लेकिन स्टेशन पर बैठने की सुविधा, पीने का साफ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यदि यहाँ आवश्यक सुविधा विकसित किया जाए तो यात्री को राहत मिलेगी और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और रेलवे को भी अधिक राजस्व मिलेगा। और साथ में मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 सरकारी स्कूल को बंद किए जाने का निर्णय को विरोध करती हूँ और जो शिक्षा के अधिकार संविधान के 21A आर्टिकल सीधा गला घोटा जा रहा है। पहले ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं की पढ़ाई की दर कम है और करीब 28 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। इससे शिक्षा को नुकसान होगा और 2.5 लाख शिक्षकों, कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोज टिंगा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में जो चाय उद्योग है उसका दिन प्रतिदिन अवस्था खराब होता जा रहा है, इसलिए उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर में जो चाय बागान है वह वामफ्रंट के 34 साल तथा टीएमसी के 14 साल के शासनकाल में उदासीनता के कारण एक के बाद एक चाय बागान बंद होते जा रहे हैं और वहाँ के जो श्रमिक हैं वो पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि चाय उद्योग में ज़्यादातर आदिवासी और गोरखा वहाँ पर हैं और चाय बागान बंद होने के कारण पलायन कर रहे हैं और काम करने के बावजूद समय पर उन्हें वेतन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उनका पीएफ का पैसा काटा जाता है, लेकिन मालिक पक्ष पीएफ का पैसा जमा नहीं करते हैं और वे गबन कर जाते हैं। और वहाँ पर शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी, आवास, जमीन का मालिकाना अधिकार जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। और वहाँ पर यहाँ तक कि बागान बंद होने के कारण, समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण वहाँ पर मानव तस्करी जैसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैडम इस पवित्र सदन को अवगत कराना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर चाय बागान का अवस्था सुधारने के लिए मैं आपके माध्यम से आवेदन करता हूँ। धन्यवाद मैडम। माननीय सदस्य श्रीमती भारती पारदी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपने क्षेत्र मलाजखंड परियोजना SCL के एक विशेष मुद्दा सभा में रखना चाहती हूँ। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना से प्रभावित ग्राम पंचायत जो छिंदी टोला, सूजी और बोरखेड़ा और उसके आसपास के गांव में गंभीर और चिंताजनक समस्या का ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ।
SCL से निकलने वाली परियोजना से निकलने वाला जहरीला रासायनिक तत्व के कारण क्षेत्र की उपजाऊ जमीन जो है वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। जल स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं, विषैला हो चुका है। प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य जीवन पर, पशुधन पर पड़ रहा है। कृषि गतिविधियां भी वहां पर पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है, जिसका स्थानीय जनता का जनजीवन अत्यंत कठिन हो चुका है। यहाँ तक कि यहाँ पर बोरवेल तथा पानी की अत्यधिक असुविधाएं हैं और जहरीला पानी निकल रहा है। इसके अलावा भी कंपनी जो कोऑपरेटिव सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, CSR की योजनाओं से प्रभावित जो भी काम हो रहा है वो बड़ा ही प्रभावहीन है, जिसके विकास कार्य की राहत राशि केवल कागजों पर है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। वर्षों से किए गए रोजगार और मुआवजे के वादा पूरी तरह से निभाया नहीं गया है, जिससे प्रभावित जनता को गहरा असंतोष रहता है। मैं आपके माध्यम से संबंधित विभागीय मंत्री से अनुरोध करती। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। आपके माध्यम से केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर पॉलिसी के नाम पर प्रदेश सरकार द्वारा कई हजार विद्यालयों के अंधाधुंध बंदी की जा रही है, जिससे प्रदेश के करीब छोटे छोटे बच्चियों की शिक्षा के साथ साथ हजारों परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। इससे करीब 3.5 लाख बच्चियां प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश के लाखों गरीब मजदूर, किसान और ग्रामीण के बच्चियां का भविष्य अंधेरे में डालने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 5000 विद्यालय बंद हो गए हैं। बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा का सवाल है, जिससे पूरे प्रदेश में विरोध और जन आक्रोश है। यह नीति शिक्षा के अधिकार अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यह नीति शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विष्णुपद राय बोलिए। माननीय सदस्य श्री विष्णुपद राय जी। नमस्कार। मैंने माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। लाक्षाद्वीप रिमोट एरिया में 2021 साल में अंडर आर्टिकल 16(4) में डोमिसाइल लॉ बनाया, 40 इयर्स एज का रिलैक्सेशन दिया है। मैं सेम मांग करूंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक कानून को लागू करे। तक अंडमान निकोबार रिमोट बैकवर्ड एरिया में आ रहा है। मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को संविधान माध्यम से आर्टिकल 14 के माध्यम से लक्षद्वीप का तरह 40 साल उम्र में और यूनियन टेरिटरी का नाते अंडमान निकोबार को डोमिसाइल लॉ में लागू करे। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी। मैडम वेरी इंपॉर्टेंट मैडम धन्यवाद सभापति महोदया। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान औरंगाबाद जिला के एक महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं। महोदया, औरंगाबाद जिले में कई को पर्यटक स्थल देव सूर्य मंदिर, जहां लाखों छठ व्रतिया प्रतिवर्ष आते हैं, उमगा पहाड़, देवकुंड और गजना धाम जैसे अनेकों पर्यटक स्थल है महोदया, जहां लाखों श्रद्धालु औरंगाबाद जिले में आते हैं। अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन वहां है महोदया। हम माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वंदे भारत का ठहराव, एक भी ट्रेन का ठहराव उस अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर नहीं है। पर्यटक को ध्यान में रखते हुए हमारी आग्रह है कि अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव अति आवश्यक किया जाए महोदय, और रफीगंज स्टेशन पर पुरुषोत्तम का ठहराव वहां पर किया जाए महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश लंके जी। माइक 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 माइक। अध्यक्ष महोदय, मी एक महत्त्वाच्या विषयावर आपले लक्ष वेधत आहे। अखंड हिंदुस्थानाचे आदर्श राजे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज 6 जून 1674 रोजी किल्ले रायगडावर राज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला। महाराज अधिकृत छत्रपती झाले। त्यानंतर महाराजांनी अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना केली। जसे आपले मंत्रिमंडळ आहे तसे महाराजांनी हे अष्टप्रधान मंडळ होते। त्यानंतर रायगडावरून स्वराज्याचा राज्यकारभार सुरू झाला। विविध खात्यांचे स्वतंत्र प्रधान किंवा मंत्री नेमले गेले। जगात कुठेही लोकशाहीचा मागमुसई किंवा अस्तित्व नसताना
शिवराज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता या लोकशाही जीवनमूल्याचा पाया घातला. पुढे हाच महाराजांचा वैचारिक वारसा महात्मा ज्योतिराव फुले असतील, राजश्री शाहू महाराज असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, या असं अनेक महापुरुषांनी हा विचारांचा वारसा समर्थपणे महाराष्ट्र आणि देशभर चालवला. अशा या शिवदुर्ग दुर्गराज रायगड किल्ल्यावर आपले एक दिवस Ma'am, on 25th July, ma'am, on 25th July, two nuns from Kerala, Sister Preeti Mary and Sister Vandana Francis, were wrongfully arrested in Chhattisgarh Durg railway station. Ma'am, these nuns have been doing exemplary work in terms of education, in terms of healthcare, but the Bajrang Dal workers have made pressure on the government and jailed them for the last 6 days. These nuns have been since false accusations have been made, cases have made wrongfully on the basis of human trafficking and also anti-conversion. Sir, madam, you should understand this is your political case. The BJP. जिन माननीय सदस्यों के नाम सूची में हैं, उनको सभी सदस्यों को कल मौका दिया जाएगा. नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष महोदय जी द्वारा माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामलों को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं. आइटम नंबर 17. अब हम मणिपुर से संबंधित सांविधिक संकल्प को पारित करेंगे. जैसा कि माननीय सदस्यों को कुछ माननीय सदस्यगण शून्यकाल में बोलने की इच्छा रखते हैं. कुछ सदस्यों को और मैं मौका देती हूँ. ये संजना जाटव. माननीय कुछ सदस्यों को और अवसर दे रही हूँ. माननीय सदस्य श्रीमती संजना जाटव. ये बोल गया. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर की जो मेन समस्या है पानी की ओर आकर्षित करना चाहूँगी. अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें पानी की टंकियाँ तो बन चुकी हैं किंतु उसमें जल आपूर्ति नहीं है. इस योजनाओं के अंतर्गत जो अधिकारी ठेकेदार की मिली भगत से कई स्थानों पर केवल कागजों में ही कार्य पूर्ण दिखाई दे रहे हैं. हकीकत में ना तो जल आम जन को मिल रहा है, ना ही उसकी गुणवत्ता युक्त निर्माण किए जा रहे हैं. और पानी की जो पाइपलाइन है वो भी घटिया क्वालिटी की बिछाई गई है, जिससे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही. पानी की जो पाइपलाइन बिछाने के जो सड़कों को खोदा गया है, ना तो उनको रिपेयर किया गया और ना ही उनको जैसे आम जन को आने में भी बहुत सामना करना पड़ता है. कुछ स्थानों पर तो बिना किसी कार्य के फील्ड इंजीनियरों द्वारा ठेकेदारों को कई करोड़ रुपयों का भुगतान भी कर दिया गया है. इस भ्रष्टाचार के बारे में मैं दिशा की मीटिंग में भी अधिकारियों को जवाब मांगा गया, पर मुझे आज तक कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला गया है और उनके खिलाफ कोई आज तक कोई कार्रवाई की गई है. मेरी सरकार से मांग है अध्यक्ष महोदय कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो दोषी ठेकेदार हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. इस प्रकार की लापरवाही द्वारा भविष्य में मनोज कुमार जी. बस ठीक है. माइक दिया जाए मैडम. माइक. महोदय, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और एक अति महत्व जो प्रश्न है उसको आपके माध्यम से सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा
ये जो सवाल है प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत 2,45,000 रसोइयां जो बिहार में काम कर रही हैं उनका रिलेटेड है। महोदया, आपको बताना चाहता हूं कि 6 से 7 घंटा सभी रसोइयों से स्कूल में काम करवाया जाता है। इवन रविवार को भी, संडे को भी छुट्टी में भी बुला करके काम कराया जाता है, लेकिन इनकी सैलरी जो है केंद्र सरकार से 1,000 मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है वो 650, सब मिलाकर के 1,650 रुपया दिया जाता है। महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी न्यूनतम सैलरी 10,000 मिलना चाहिए। 65 साल का इनका नौकरी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 12 महीना 10 ही महीना का इनका सैलरी मिलता है 1,650 रुपया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैडम, इंटरनेट और सोशल मीडिया आज दैनिक वास्तविकता ये है कि जो जिंदगियां छीनी जा रही हैं, प्रतिष्ठा नष्ट करी जा रही है और सार्वजनिक संवाद में जहर घोल दिया जा रहा है। हमारे बीच जो सबसे कमज़ोर है, अक्सर सबसे पहले शिकार वो होते हैं। युवा और महिलाएं लगातार साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, महिलाओं को सार्वजनिक और ऑनलाइन जीवन में भाग लेने से रोकता है। परिवारों को की अखंडता और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा में एक क्लिक से चकनाचूर हो रही है। मैडम, ये उदाहरण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के बारे में नहीं है, ये जवाबदेही का एक ढांचा स्थापित करने के बारे में है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानहानि, उत्पीड़न और हिंसा के लिए उकसाने का लाइसेंस नहीं बना सकते। हमारे कानूनी ढांचे को मजबूत करें। हमें वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से परे जाकर उचित और सही सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है। इन नियमों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित करनी चाहिए। मैडम, सेंसरशिप खतरनाक और अवैध सामग्री पे एक आवश्यक नियंत्रण है और विशेष रूप से हमारे युवाओं के बीच जिम्मेदारी सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में सिखाने के लिए राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियानों में निवेश करना की आवश्यकता है। अंत में मेरा निवेदन है, इस सदन के माध्यम से हमारा डिजिटल भविष्य एक चौराहे पे खड़ा है। हम या तो अपने समाज में गलत सूचना, नफरत और भय को इरोड होने दे सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं, एक साहसिक निर्णायक कदम उठा सकते हैं कि सोशल मीडिया एक अच्छे उपकरण के रूप में काम करे। मैं इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं, राजनीतिक विभाजन से ऊपर उठकर एक बेहतर समाज, एक सुरक्षित, अधिक जिम्मेदारी और अधिक न्यायपूर्ण डिजिटल भारत के निर्माण में हम साथ आए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विष्णु प्रसाद जी। माननीय सदस्य श्री प्रभा मल्लिकार्जुन जी, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। Thank you, Speaker Madam. I wish to raise concern about the need to revise the wage ceiling under the ESI scheme. Currently, workers earning above rupees 21,000 per month are excluded from ESI coverage. This limit has not been revised since 2017, despite rising wages and inflation resulting in the exclusion of lakhs of vulnerable workers from vital social protection. States like Karnataka have proposed scientific revisions to minimum wages with a draft notification suggesting monthly wages from rupees 19,000 to over rupees 34,000. I urge the government to expedite this process, raise the ESI ceiling to rupees 30,000 per month, institutionalize periodic revisions and safeguard existing beneficiaries through statutory amendments and stakeholder consultations. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या जी। Speaker Madam, thank you for this opportunity. Bengaluru is India's economic engine. It is one of the most important cities today and for the next 20 years for India's growth. However, the city is suffering from a big infrastructure deficit, and the only way that traffic congestion in the city can be addressed is through expedited metro expansion. Madam, through you, I want to request the Honorable Minister of Mahua to kindly expedite the opening of the already delayed Yellow Line operations. This connects the residential part of Bengaluru to the electronic city, and once opened, more than 8 lakh people will travel in it every day.
So my request is to kindly open it as soon as possible. The second request I have is, 4 months ago, the BMRCL hiked the metro fare prices by 130%. Public transport, especially services like metro, must be affordable to the common man. This hike in metro fare has resulted in a deep and steep reduction in the ridership. In the last 4 months, despite multiple requests, BMRCL has not made public the Fare Fixation Committee report. Madam, this is a democracy. Public, especially riders who travel in metro, deserve the right to know on what basis BMRCL increased the metro fare by 130%. My request to the minister is to kindly instruct authorities of BMRCL to immediately publish the Fare Fixation Committee report. The third and final request I have is, from the last few months, the approval for the Red Line Metro, which connects the most important critical corridor of Bengaluru, is pending before the ministry. I request through you the minister to kindly expedite the approval for Red Line Metro to ease the traffic congestion in Bengaluru. Thank you so much, madam. माननीय सदस्य श्री के फ्रांसिस जाट जी. Matter, I am again raising this matter of arrest of nuns in Chhattisgarh, madam. The matter is, the facts of the matter is very well known to the House. It was raised early in the morning. Madam, the bail application, when it was moved in the Sessions Court, the court has committed it to the NIA court now. The issue is getting more serious now. So, madam, this is an absolutely, concocted case which has been taken up by an outfit, which is very unfortunate. The state government has to act. We had requested the Chief Minister to immediately intervene in this matter. Now that it has gone out of the hands of the state government, we would request the Central Government of India, Central Government Home Ministry, to intervene in this matter and get justice for those two hapless women who has been jailed for no fault of theirs. Actually, seeking employment is not a crime, madam. We have 2.5 million migrant workers in Kerala. They come through various sources. Likewise, these ladies, they sought employment with these nuns, and they had come to take them to their place. And the Bajrang Dal, they alleged, human trafficking and forced religious conversion, and the police have registered a false case. It's very unfortunate. This cuts at the very root of freedom of faith and movement, freedom of movement, which are constitutional values guaranteed in this country. This is a democracy. This is a secular nation. This case, sir, if it is not solved immediately, there will be widespread consequences in our country. I request the central government to immediately intervene and get justice for these two hapless nuns who have done nothing wrong, nothing against the law. I would request the central government to intervene in this matter. Thank you. माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी. Important issue of my area. मैं पंजाब से आता हूँ. पटियाला में एक बरसाती नदी है जो पिछले दशकों से उस हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है. जनधन का नुकसान होता है, पशुधन का नुकसान होता है, फसलें तबाह होती हैं, आर्थिकता तबाह होती है. शहर और गांव दोनों जगह पे लाखों लाख लोग प्रभावित होते हैं. परंतु पिछले कई दशकों से इस नदी का कोई पक्का इंतजाम नहीं किया गया. मेरी सरकार से अनुरोध है कि ये नदी जो हिमाचल से बनती है और हमारे मोहाली, पटियाला, संगरूर और बठिंडा जिले में 4 जिलों में ये नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा तबाही लाती है, तो इसका कटिबद्ध किया जाए. यहाँ चेक डैम बनाए जाएं और चेक डैम के दोनों तरफ वहाँ पे जो है कोई तालाब बनाए जाएं जहाँ मछली पालन से लेकर एक तो किसानों की आय में जाती बढ़ोतरी होगी और दूसरा सिंचाई में ये पानी काम आएगा और तबाही से भी हमारा प्रदेश बच जाएगा. सो घग्गर नदी के बारे में मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा उठाना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया. थैंक यू वेरी मच. माननीय सदस्य श्री सुरेश महात्रे जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जे काही दिवसातच चालू होणार आहे आणि या विमानतळासाठी स्वर्गीय
दिवा पाटील साहेबांचं नाव द्यावं असं स्थानिक भूमिपुत्रांची मागणी होती आणि त्या मागणीला अनुसरून महाराष्ट्र सरकारच्या विधिमंडळात आणि विधान परिषदेत देखील दोन्ही ठिकाणी एकमताने ठराव मंजूर होऊन तो ठराव केंद्र सरकारकडे आलेला आहे. मी दिवा पाटील साहेबांविषयी एवढंच बोलेन मॅडम की 2 वेळा खासदार, 5 वेळा आमदार, महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते आणि खास करून त्यांच्या प्रयत्नामुळे 1989 मध्ये महाराष्ट्रात जी महिला भ्रूण हत्या प्रतिबंधक कायदा लागू झाला त्याचं समर्थन केंद्र सरकारने देखील केलं आणि 1994 मध्ये केंद्र सरकारने देखील त्या कायद्याला मान्यता दिली. 1984 मध्ये जो झाशी गावचं आंदोलन झाला सिडकोच्या विरोधात मॅडम, त्या आंदोलन देखील दिवा पाटील साहेब स्वतः जखमी होते, 5 लोक हुतात्मे झाले आणि त्यानंतर भूमीच्या बदल्यात भूमी असं 12.5% पुनर्वसन धोरण लागू करण्याची मोलाची भूमिका त्यांच्यामार्फत बजावली गेली. 2013 मध्ये जो कायदा लागू झाला भूमी अधिग्रहण कायदा त्याच तत्वावर तो लागू होता आणि म्हणूनच या ऐतिहासिक आणि सामाजिक योगदानाला उचित सन्मान देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2022 मध्ये निर्णय घेतलेला आहे आणि म्हणूनच मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की त्या निर्णयाची लवकरात लवकर पूर्तता करावी आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्वर्गीय दिवा पाटील साहेबांचं नाव द्यावं जेणेकरून आत्तापर्यंत त्यांनी जे काम केलेलं आहे, समाजकार्य केलेलं आहे, त्या समाजकार्याला देखील एक मानवंदना होईल आणि त्यांच्या स्मृतीस देखील अभिवादन होईल अशा प्रकारची मी विनंती करतो. धन्यवाद मॅडम. माननीय सदस्य श्री बी मेहताब जी. माननीय सदस्य श्री बी मेहताब जी. Thank you, Madam. Goods and Services Tax has been in effect nationwide since 1st July 2017, encompassing handloom products as well as essential raw materials such as yarn. In Odisha alone, weavers collectively procure approximately 152 crore rupees worth of yarn annually, attracting a GST liability of 7.6 crore rupees at the prevailing rate of 5%. The imposition of GST on these inputs directly escalates the production cost and by extension the scale price of handloom products. This burden hampers market competitiveness, leading to a decline in marketing turnover and adversely affecting the livelihoods of the weavers dependent on this traditional profession. I urge upon the government to consider exempting handloom products and their raw materials from GST, thereby promoting the sector and safeguarding the economic well-being of weavers across the country. माननीय सदस्य श्री सप्तागिरी उलाका जी. Thank you, Chairman Madam, for giving me this opportunity to speak on a very important issue. Ma'am, I would like to raise the important issue of a tragic and deeply disturbing incident of self-immolation and death of a young student in Balasore, Odisha. She has been facing mental harassment, victimization, and failure of institutional and administrative mechanisms to respond to her repeated claims. She had escalated to her local MLA, local MP, the Chief Minister, Education Minister, even the Union Education Minister. But it fell into deaf ears. वो बेचारी बार-बार लड़ाई करती रही, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुना. मजबूरन वो अपने आप को जला के she died. And this is a very, very sad incident. Sir, ma'am, ऐसे ही घटना उड़ीसा में बार-बार होती आ रहे. एक माइनर महिलाओं को 3 सदस्यों ने उनको जला के वो एम्स से भर्ती हुई है. हर दिन रेप्स होते रहते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की केस होती है. एंड उड़ीसा में अब 1 साल में देखोगे 40,000 के ऊपर महिलाएं निखोज है, बहुत सारी महिलाएं 15,000 के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट की केस है. हर दिन 8 रेप होता है. उड़ीसा का लॉ एंड सिचुएशन पूरा ही तहस नहस हो गया है सर. एंड मैं आपसे चाहता हूं इस पर्टिकुलर जो बालेश्वर का घटना है इसके लिए मेरे को सुझाव है. देयर शुड बी ए टाइम बाउंड supervised investigation, suspension of negligent officials, mandatory campus safety audits, ICC constitution, POSH compliance, surveillance, 24/7 confidential digital complaint and tracking platform, a rapid harassment response protocol with 72 hours predictive mandate, trauma counseling, witness and victim family protection and fast track trial. ये घटना फ्यूचर में जैसा ना हो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए. यही बोल के अपनी बात को यहीं रखता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. श्री अनिल फिरोजिया जी. सभापति जी, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय में बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं
माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से ये मांग रखता हूँ कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल का जो मंदिर है वो बड़ा प्राचीन है और विश्व में प्रसिद्ध है। महालोक के लोकार्पण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उसका लोकार्पण करा, उसके बाद वहाँ पे तीर्थयात्री दर्शनार्थियों की संख्या लगभग एक साल में 7 करोड़ लोग वहाँ प्रतिवर्ष आने लगे हैं और 2028 में वहाँ सिंहस्थ होने वाला है। वहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले भी मांग रखी थी और आज भी रख रहा हूँ कि CISF या सेंट्रल रिजर्व फोर्स वहाँ पे दिया जाए, क्योंकि पहले भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश का दुबे जो है वो वहाँ पे पकड़ाया है और एक अभी कोई जासूस भी पकड़ाई है और वो सीमी का गढ़ रहा है, PIF का गढ़ है, इसलिए उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CISF और सेंट्रल रिजर्व फोर्स में से कुछ भी एक वहाँ दिया जाए। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य जितेंद्र दोहरे जी। जितेंद्र दोहरे जी। हाँ, हो गया नहीं हुआ तो ये हो गया। आगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। कैमरा नहीं चलो। ये देश संविधान से चलता है माननीय जी, लेकिन संविधान के द्वारा हम लोगों को प्राइमरी के बच्चों को जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा को खत्म किया जा रहा है मानवर। उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा हजारों विद्यालयों को पेरेंट के नाम पर बंद किया जा रहा है। प्रदेश में 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय, 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन करते हुए हजारों प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। इसके पूर्व में भी एक ही परिसर में स्थित लगभग 20,000 विद्यालयों को संविलीन करके प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में चल रही मर्जर प्रक्रिया से जहां छात्रों से विद्यालयों की दूरी अधिक होगी, वही हजारों रसोइयों की सेवा समाप्त हो जाएगी। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापकों को एवं ग्राम प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति पर दबाव बनाकर विद्यालय बंद करने के समर्थन में प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार विद्यालय बंद करके नौनिहालों की शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। हजारों प्रधानाध्यापकों के पद एवं रसोइयों की सेवा। गौतम नागेश जी। అధ్యక్ష, నా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం ఆదిలాబాదు తెలంగాణ నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మా రాష్ట్రంలో మా జిల్లాలో కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ అని చెప్పేసి ట్రైబల్ టైగర్ కారిడార్ అని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపుగా 339 గ్రామాలని 1,49,000 హెక్టార్ల భూమిని కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ చేయడం కోసం జియోని కూడా రిలీజ్ చేసింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే తన ప్రతిపాదన తయారు చేసుకొని జియో ఇచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిందని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన నెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ మధ్యనే జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అందరూ కూడా ప్రజలు వ్యతిరేకించిన తర్వాత దానిని నిలుపుదల చేసింది. నేను ఈ సందర్భాన మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి అటవీ శాఖ మంత్రుల వారిని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నిలుపుదల చేసినటువంటి ఆ జియోని రద్దు చేసుకోవడానికి ఇక్కడి నుంచి కేంద్రం నుంచి ఆదేశాలు ఇవ్వాల్సిందిగా ఈ సందర్భాన కోరుతూ మీకు ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను అధ్యక్ష. थैंक यू. माननीय सदस्य श्री गुरमीत सिंह मीर जी. गुरमीत सिंह जी. कुलदीप इंदौरा। अध्यक्ष जी, सभापति जी, धन्यवाद आपका। गुरमीत सिंह जी, आप ये नहीं, कुलदीप इंदौरा। गुरदीप सिंह जी। यस, धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं जिस
मुद्दे से देश के सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, उस तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति जी, डीपीसीओ 2013 के एक्ट के अंदर कुछ इसेंशियल मेडिसिन हैं जिनका रेट कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ होती हैं वो बीपी की, डायबिटीज़ की, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। सेम कंपोजिशन की मेडिसिन 10 अलग कंपनीज बना रही हैं और दसों का अलग रेट है। 300 से लेकर 1000 तक प्रॉफिट जो कमा रहे हैं। आप देखिए 3 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग है और एक कंपनी दे रही है 10 रुपए की और एक कंपनी दे रही है 50 रुपए की। सो मेरा सरकार से आग्रह है कि कम से कम सेम कंपोजिशन की जो मेडिसिन है उसकी कोई रेट की कैपिंग की जाए ताकि लूट जो देश के लोगों की हो रही है वो बंद हो सके। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य रामवीर सिंह बिदुरी जी। आदरणीय सभापति महोदय, 1960 में कांग्रेस की सरकार ने मेरे लोकसभा क्षेत्र बदरपुर गांव में एनटीपीसी का पावर हाउस बनाने के लिए किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन कौड़ियों के दामों पर खरीदी गई। अब क्योंकि एनटीपीसी पावर हाउस बंद हो गया है, क्षेत्रवासियों की यह इच्छा है कि उस खाली पड़ी सैकड़ों एकड़ जमीन पर क्षेत्रवासियों के लिए एक कॉलेज बनाया जाए, स्टेडियम बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हॉस्पिटल, स्टेडियम और कॉलेज बनाने के लिए इस एनटीपीसी की खाली जमीन में से जमीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हॉस्पिटल, कॉलेज और स्टेडियम बनाया जा सके। और एनटीपीसी की जमीन पर जो केंद्रीय विद्यालय चल रहा है उसको बंद करने पर विचार किया जा रहा है। छात्रों के हित में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं। और उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने बदरपुर गांव में जो एक बड़ा स्टेडियम था उसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो उसके स्थान पर नया स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री भास्कर भगड जी। महोदय, माझ्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये देशातील धन्यवाद सभापती महोदय, माझ्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी 10% कांदा उत्पादन होतं। मागच्या काळामध्ये कांद्याचं उत्पादन सरासरीपेक्षा जास्त झालं, परंतु मे महिन्यामध्ये अवकाळी पाऊस सुरू झाला आणि अवकाळी पावसामुळे कांदा असेल, द्राक्ष असेल, इतर पिकांचं मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान झालं। मी या संदर्भामध्ये आदरणीय कृषी मंत्र्यांना देखील पत्र दिलेले की प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे म्हणजे आजपर्यंत पाऊस थांबला नाही आणि त्यामुळे कांदा, द्राक्ष या शेतांचं, या पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे। तो ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशा प्रकारची मागणी या निमित्ताने केली। विशेषतः कांद्या पिकाच्या बाबतीमध्ये आज एका बाजूला आसमानी संकटामुळे कांद्याचं नुकसान झालं, दुसऱ्या बाजूला मार्केटमध्ये कांदा आल्यानंतर त्याला आज कुठल्याही प्रकारचा भाव 700 आणि 800 रुपयांनी कांदा हा मार्केटमध्ये विकला जातो। शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च देखील त्या ठिकाणी निघत नाही आणि म्हणून माझी आपणाला या निमित्ताने विनंती सरकारकडे करतोय की आपण शेतकऱ्याला कांद्याला हमी भाव द्यावा, त्याचप्रमाणे नाफेड आणि NCCFच्या माध्यमातून होणारी खरेदी ही बाजार समितीमध्ये करावी आणि माझ्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये कांद्यावरती आधारित प्रक्रिया उद्योग स्थापन करावे, तरच खऱ्या अर्थाने शेतकरी वाचू शकेल। ही मागणी मी या निमित्ताने आपल्याकडे करतो। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार रावत जी। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मिश्रिक के अंतर्गत बिलग्राम मंडलावा उन्नाव स्टेट हाईवे 38 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह राजमार्ग हरदोई, एक तरफ हरदोई उन्नाव को जोड़ता है, दूसरी तरफ शाहजहांपुर को नेशनल हाईवे 730 से जोड़ता है। हरदोई में यह सकरा होने के कारण यहाँ आए दिन घटनाएं, भीषण दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले वर्ष हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मल्लामा की यहाँ पर डेथ हो गई और इसके साथ साथ 15 लोगों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान करी। मेरी माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि इस नेशनल स्टेट हाईवे 38 को और स्टेट हाईवे 137 को नेशनल हाईवे की स्वीकृति दी जाए और इसे 4 लेन बनाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री शिवपाल सिंह यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
मैं आज शून्यकाल में लोक महत्व के प्रश्न पर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय का ध्यान प्रतापगढ़ की, जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, में उच्च शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है। प्रतापगढ़ की जनसंख्या 32 लाख से अधिक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात 85% से ज़्यादा है। जिले के अधिकतर परिवार कृषि पर निर्भर है और उनकी आर्थिक स्थिति निम्न वर्गीय है। ऐसी स्थिति में जब बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता है तो उनका परिवार अतिरिक्त बोझ सहन नहीं कर पाता है। उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को प्रयागराज, सुल्तानपुर, रायबरेली या लखनऊ जैसे शहरों को जाना पड़ता है। ये स्थिति विशेष रूप से छात्राओं के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। सामाजिक परिवेश, दूरी और सुरक्षा के कारण माता पिता अपनी बेटियों को अन्य जिलों में भेजने से हिचकते हैं। परिणाम स्वरूप प्रतिभाशाली छात्राओं को भी उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता और वे ग्रेजुएट, स्नातक की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। जिले में कोई महाविद्यालय नहीं है जो उन्हें सुरक्षित और सुलभ शिक्षा दे सके। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि प्रतापगढ़ जिले में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाए। इसकी स्थापना है सर्वे कराकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री राजकुमार रोज जी। सभापति महोदय, आपने 0 ओवर में बोलने का अवसर प्रदान किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की मूल भावना थी कि आदि अनादिकाल से वन भूमि पर निवास रहने वाले आदिवासी समुदाय को अपना मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से आज दिनांक तक 51 लाख आदिवासी समुदाय ने अपने दावा पेश किया। इसमें से 25 लाख आदिवासियों को मिला और आज भी 26 लाख आदिवासी परिवार वन अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया है, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला है। मतलब 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी समुदाय आज भी वन विभाग की जमीन पे रह रहा है, जो सरकार की नजर में अतिक्रमणकारी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अधिकारियों ने कहा कि 4 लाख आदिवासियों को बाघ विस्थापन के लिए, मतलब बाघों के स्थापित करने के लिए उनको विस्थापित किया जाए। अगर टाइगरों से इतना प्यार है, ट्राइबलों को विस्थापित किया जा रहा है, तो 1-2 जो अधिकारी हैं या जो मंत्री जी हैं उनके वहां टाइगर छोड़ दिया जाए। टाइगर को मार रखने के लिए आदिवासियों को विस्थापित क्यों किया जा रहा है? वर्तमान में मध्य प्रदेश देवास में भरी बारिश में आदिवासी समुदाय के घरों को वन विभाग से विस्थापित किया जा रहा है। आजादी से पहले आदिवासी समुदाय अंग्रेजों और मुगलों से हथियार लेके वो आते थे तो हथियार की लड़ाई लड़ लेते थे, लेकिन आज के समय में आदिवासी समुदाय के साथ कलम और कागज की लड़ाई लड़ी जा रही है। कलम और कागज के हथियारों से उनको विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। मेरी मांग ये है कि वर्तमान में 26 लाख आदिवासी परिवार के जो दावे जो पेंडिंग है और जो निरस्त कर दिए हैं, सरकार पुनः उनको वापस रिव्यू करके इन आदिवासी समुदाय को उनका मालिकाना हक दिया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री विजय बघेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इधर हूँ सर। अभी सुबह जब हम यहाँ शून्यकाल शुरू हुआ तो जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो 25 जुलाई को घटना घटी, हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की 3 भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहाँ पे 2 नन मिली और उनको आगरा ले जाने के लिए उन्होंने टिकट कराया था। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। ये 8:30 बजे सुबह की बात है। और जब उससे पूछा गया तो वो रो के सहमी हुई, बोली कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूँ। उनके जीजा जी से बात हुई, उनका नंबर उपलब्ध कराई हो, फिर उनके परिवार वालों से बात हुई। उसके बाद पुलिस आई, जीआरपी थाना के अधिकारी कर्मचारी आए, बजरंग दल के भी साथी आए, बहुत सारे जिम्मेदार लोग आए। सोशल मीडिया में ये खबर फैलने लगी और बहुत लोग इकट्ठा हो गए और उस बीच में पूरी छानबीन हुई। वो जो 2 नन हैं, एक जबलपुर से आई थी, एक आगरा से आई। वो क्यों आई? पहली बार छत्तीसगढ़ आई
और कहीं नहीं रुकी, स्टेशन में ही रुकी। ये प्रश्न उठता है माननीय सभापति महोदय, और इसको हमारे माननीय वरिष्ठ सांसदगण जो जिम्मेदार हैं, नेक पद में रह चुके हैं, वो इसको भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के सांसद, खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी इसमें ट्वीट की है। ये करके एक भ्रामक प्रचार छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र चल रहा है और वहां पे दो धर्मों के बीच में लड़ाने के एक प्रयास इन कांग्रेस के जिम्मेदार सांसदों द्वारा किया जा रहा है। जो रवि निगम कर है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिना जानकारी के, क्या है आपसे, आप उन लोगों को जानती है, कहां से आई? जब आपके केरल की लड़कियां जब यहाँ आई, तो क्या हम छत्तीसगढ़ की अपनी बेटियों का इज्जत नहीं बचाएंगे? हमारी आदिवासी बेटियों का हम सुरक्षा नहीं करेंगे? हमारे माननीय महेश कश्यप सांसद बस्तर के, जिनके क्षेत्र से वो लड़कियां लाई गई। धन्यवाद, धन्यवाद जी। ऑनरेबल मेंबर श्री सेलिंग संगमा जी, सेलिंग संगमा जी, देखो वो गलत रिकॉर्ड पे जा रहा है। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। सेलिंग संगमा जी, सेलिंग संगमा जी, प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। सेलिंग संगमा जी, प्लीज स्टार्ट। Mike, please. Thank you, Mr. Chairman, sir. I rise to speak on Meghalaya's spiraling drugs crisis and epidemic in Meghalaya. I rise to expose the catastrophic failure threatening in Northeast, especially Meghalaya, which faces an unprecedented drugs with 10% of our population. That is 3 lakh people trapped in the addiction, horrifying increase from 2 lakhs just last year. Among youth aged 15 to 29, the prevalence rate reaches a devastating 30% of our populations in Meghalaya. The Meghalaya proximity to the Golden Triangle and Manipur's unrest have worsened trafficking. However, this hasn't been reflected in the custom inspection. Custom inspection, Mr. Speaker, sir, the Chairman, sir. Only 10% of anything that is entering India, only 10% is checked. Rest of the illegal trucks inside coming to the Meghalaya is not checked. That's why I would like to urge upon this government to kindly see that whatever is coming through the international border should be checked. Therefore, Mr. Speaker, sir, I urge the Union Ministry, Home Affairs, to immediately establish the National Drug Eradication Command to the Northeast, provided funding and government-run rehabilitation center to onslaught the drugs menace in Meghalaya. One more, Speaker, sir. Instead of catching hold of the drugs cartel and mafia, the government of Chhattisgarh is holding the innocent 2 Christian nuns. 2 Christian nuns, which they were innocent, instead of catching all the drugs menace. Okay, thank you. Therefore, Mr. Speaker, sir, thank you. Without any proper, Shri just Hanuman Beniwal ji, Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान प्रदेश के अंदर पूर्ववर्ती सरकार और उससे पहले के समय के अंदर पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, एसआई भर्ती जिसमें 859 नए थानेदार बनाने थे, 103 से ज्यादा ट्रेनी और अन्य लोग जेल के अंदर एसओजी जांच कर रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में हमने बड़ी रैलियां, 1-1.5 लाख की रैली जयपुर के अंदर की, राजधानी के अंदर जेल भरो आंदोलन चलाया। आज भी 100 दिन से प्रदेश का युवा एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर, आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर जयपुर में धरने पे, मैं स्वयं लगातार 70 दिन से ज्यादा धरने पे था। लोकसभा चल रही है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आरपीएससी को भंग करके, एसआई भर्ती को रद्द करके, पेपर लीक की तमाम घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही है, जिन्होंने राजस्थान को बदनाम कर दिया, हम चाहते हैं कि इन मामलों की सीबीआई जांच हो। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अपील कर चुके हैं, टाइम भी मांगा है कि एसआई भर्ती रद्द करें और पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम के लिए नया कानून राजस्थान के अंदर बनाए। ये हमारी मांग है। श्री जदुबीर वदियर जी। Mysore is a city known for its heritage, its education, its culture, and indeed as the cultural capital of Karnataka. It's a matter of great surprise then that the city is now in the news for the uncovering of a synthetic drugs MDMA manufacturing center.
The worth of the drugs was reported to be around 390 crores. Sir, this drug manufacturing unit was in plain sight of the authorities, and yet no action was taken by the Karnataka police. It is extremely shocking that it was the Maharashtra police who came into Mysore and uncovered this drug manufacturing unit. When asked about this, the Home Minister of Karnataka simply said, "We failed." It's this lax attitude that is creating and indeed weakening our law and order institutions in Karnataka. Recently in Udaygiri as well, when the police station was attacked, no action was taken on the perpetrators of the attack. In the stampede in Bangalore, the police were simply scapegoated as being the perpetrators. The synthetic narcotics points towards a very operation that is extremely crucially hampering lives in Mysore, especially the youth. It is also a matter of concern that in a recent raid in Gulbarga, the aide of the Minister for IT in our state was also caught in that same drug bust. Sir, through you, I would ask the Home Minister, or the Home Ministry rather, to launch an interstate investigation into this matter and to also ask the NCB task force to be situated in Mysore until such activities are put to a standstill. Thank you. Sri Anil Desai.